धनुश्री दत्ता ने #MeToo मूवमेंट को लेकर नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में #MeToo मूवमेंट के चलते अब तक कई लोगों के चेहरे सामने आ चुके हैं और बॉलीवुड से लेकर टीवी के कई एक्ट्रेसेस ने खुलासा किया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। इस मूवमेंट के जरिए आलोक नाथ, विकास बहल, साजिद खान, राजकुमार हिरानी और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं अब लीजिए, बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी खुलासा कर दिया है कि वो भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। दरअसल हाल ही में प्रियंका ने न्यूयॉर्क के एक इवेंट के दौरान अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि उन्हें भी यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। बता दें कि जब इस इवेंट के दौरान प्रियंका से पूछा गया क्या उनके साथ कभी यौन उत्पीड़न हुआ, तो इस बार देसी गर्ल ने बेझिझक कहा, शायद इस कमरे में मौजूद सभी महिलाओं के साथ कम से कम एक बार ऐसा जरूर हुआ है, क्योंकि ऐसा महिलाओं के साथ होता आया है। प्रियंका ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, अब क्योंकि हम एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए लोगों के पास अब हमें रोकने की शक्ति नहीं है। हमारे पास हमेशा से कहने के लिए था, बस किसी ने हमें सुना नहीं। लेकिन अब जब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता और ये एक अविश्वसनीय शक्ति है। अब अगर मेरे पास एक कहानी है और मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं है। बता दें कि प्रियंका से पहले हाल ही में दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने भी खुलासा किया कि वो भी यौन उत्पीड़न की चपेट में आ चुकी है। बात करें प्रियंका के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो जल्द ही वो फरहान अख्तर के साथ फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आने वाली है। इस फिल्म में दोनों के साथ ज़ारा वसीम भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। I'm not going to repeat the same thing over and over again. I've already repeated a million times. If you guys want, y'all can take cutouts from other channels because I'm honestly tired. Me repeating the same story will not make it more authentic than it was 10 years ago, first of all. And point being, I was harassed, I was attacked by the Manse party, and all this was done in tandem with Nana Patekar, Ganesh Acharya, producer Sami Siddiqui, and what's the fourth guy's name? Rakesh Sarang, the director of the film. These guys were involved in making me go through this hell, and even today, nobody has condemned their actions from the film industry, and many big stars, including Rajnikant and Akshay Kumar and Shahid Kapoor, and these people continue to work with Ganesh Acharya and Nana Patekar. My question is, no, you cannot do that. Somebody who's gotten away legally by harassing me, sending goons to attack me, you cannot work with that person and rub it on my face. Where I had to walk away from the industry out of fear, trauma, emotional and psychological, trauma. I had to walk away and I could not do movies because I was afraid to be on a movie set because of all this horrendous stuff that went on. Have you all ever experienced being attacked by an angry mob? How many people over here have experienced being attacked by an angry mob? A mob lynching. How many of y'all have been a part of a mob lynching? None of y'all. You do not know how horrendous that situation is. You don't know if you're going to come out of it alive. They were breaking our windshields, our car. One guy was jumping on top of the car. My mom and dad were inside the car. Do you know how horrendous it is to see your parents in a situation which they're not even supposed to be in? I was sitting there and thinking, what if I'm going to lose my parents tonight? I was worried if you're going to go to the hospital or are we going to go home? So after all this, these big stars, are you soulless and conscienceless? Does it not matter at all? You want investigation? How much investigation do you want for you to condemn these actions? Manse has been attacking the film industry for a very long time.
they themselves came and spoke that we will get Tanushi Datta out of the city, we will get her out of the industry. तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही बोला वो क्या कर रहे हैं, पूरा मीडिया में रिकॉर्ड है. नाना पाटेकर और राज ठाकरे की दोस्ती थी उस वक्त, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी. इस क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको, आप बताइए ना. ये बहाने हैं आप सब लोगों के. You don't want to stand up for what's right and you want to support, you want to keep supporting criminals. I'm not saying that come out with all your secrets of what happened to you and what happened to this thing. Just stop working with them. You don't want to tell what happened to you, maybe nothing happened to you. And that's why you're not even compassionate about anybody else who's speaking their truth. Maybe nobody harassed you ever in your life. Absolutely fine. But if somebody is saying something, at least have the heart to listen to that person. I went to the producers and the Actors Association and I got no help from there. What's the point of creating such fake, bogus associations if the associations also don't do anything for you? Just because this guy goes around sucking up to big actors and getting small roles in their movies, stop. Don't you have to show your face to God someday in life, or are you not even concerned about that? Stop working with these people. It's been almost 10 years now. You've been fighting the battle. But what prompted you to again come up and speak about it? What exactly happened? Well, I came to India for a holiday, and I got this response from the media. A lot of people wanted to speak with me. Ki, why have you been away? And last 8 years mein, all kinds of gossip about me, malicious gossip, in print, on YouTube, behind closed doors. ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, this and that. I wanted to set the record straight. तुम खुद अपने आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाओ, people, media, everybody. तुम मुझसे ही सुन लो क्या हुआ. मैंने 10 साल पहले बोला था और 10 साल उसके बाद और भी कई चीज़ें मेरी लाइफ में हुई. मेरे आध्यात्म की तरफ मैंने रुख किया, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा. वो एक जर्नी थी मेरी लाइफ की, जिसकी वजह से आज मैं खड़ी भी हूँ आपके सामने और क्लैरिटी से, शक्ति से बोल भी रही हूँ फिर से अपनी कहानी. जो जंग मैं बहुत पहले छोड़ के जा चुकी थी, बिकॉज आप नहीं लड़ सकते अकेले. आप बोलते रहो एक ही चीज़, क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था, सारे बता तो दिया, तुमने क्या किया सुन के. जब रिजल्ट नहीं आता है तो यू कैन कीप वेस्टिंग एनर्जी टॉकिंग ना. आई रादर वांटेड टू कंजर्व माई एनर्जी एंड फोकस ऑन माई ओन पीस, माई ओन वेल बीइंग, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. तो ये सारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे और किसी ने मुझे पूछ लिया कि हमारे देश में मी टू मूवमेंट क्यों नहीं होता. तो मैंने बोला मी टू मूवमेंट कहाँ से होगा. 10 साल पहले जब मैंने कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ, मुझे जस्टिस मिला. सब तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ. लोग भी काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ. उसको पहले मैटर सॉल्व करो, फिर मी टू शीटू बोलना. यहाँ पे इंडिया में ना सबको आदत है, अमेरिका में जो भी होता है उनको कॉपी करना है. यहाँ पे वहाँ के कपड़े कॉपी करने, वहाँ के हेयर स्टाइल कॉपी करना है. वहाँ मी टू हुआ तो यहाँ भी सबने शुरू कर दिया. तुम हो क्या मी टू के लायक. वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम और वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ की अवेयरनेस, सोच और विचारधारा मी टू सिस्टम, मी टू मूवमेंट को सपोर्ट करती है. वहाँ के उस देश में ये मूवमेंट तब हुआ जब लड़कियों ने सामने आके बात बोलनी शुरू कर दी. जब तक उन्होंने बोली नहीं थी तब तक सारा कुछ ढका हुआ था, लेकिन जब उन्हें बोलना शुरू कर दिया पूरे का पूरा पहाड़ गिर पड़ा. लेकिन हमारे देश में लड़कियां आदि युग से बोलती आ रही है, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो. तुम लोग लड़कियों को ही प्रॉस्टिट्यूट बना देते हो कि यार तो ऐसी होगी, यार तो वैसी होगी, झूठ बोल रही होगी. सबसे पहला रिएक्शन हमारे देश में जब भी कोई लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है, ये तो मैं अभी हरासमेंट की बात कर रही हूँ, असॉल्ट भी होते हैं, अब्यूज़ भी होते हैं और कितनी सारी चीज़ें. एक लड़की अगर आके किसी आदमी पे ये भी आरोप लगा लेना कि इसने मेरी कोई चीज़ चुरा ली, उस पर भी सबसे पहले डाउट उस पर फेंका जाता है कि लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है. तो तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग मीटू के लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा मीटू यहाँ पे. तो ये अमेरिका को कॉपी करके हमको मीटू करना चाहिए. तुम अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे लड़कियों को लगेगा कि हाँ अगर हम आके कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ निकलेगा असर,
यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पहाड़ टूट के गिरना चाहिए, हिला तो थोड़ा सा हिले, एक आध कंकड़ पत्थर तो गिरे। यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ वैसे ही फिक्स रहता है, तो कौन आएगा बोलने के लिए? मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे को वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल चुका है, मैं वहाँ की रेसिडेंट हूँ। अभी यहाँ पे हूँ, छुट्टियाँ मना के चली जाऊँगी, वहाँ पे मेरी लाइफ है, वहाँ पे मेरी जॉब्स है, वहाँ पे मेरी इनकम है। मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट ईयर छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये बॉलीवुड वाले मेरे साथ काम करें ना करें। लेकिन जिन लड़कियों को आप बोल रहे हैं कि आगे आके आप बोलो, उनको फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उनकी पूरी लाइवलीहुड यहाँ पे है, उनकी सोसाइटी यहाँ पे है। आप समझ रहे हैं? तो ये बस बोलने की बातें हैं, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जब कोई इंसान कंफर्टेबली बोल भी सके। और सुनो सुनो बस, फिर डिसाइड करो। यहाँ पे सुनते ही नहीं है लोग, पहले ही अजीब सा कुछ थ्रो कर देंगे आपके ऊपर।